سیاہی مٹائیے، سیاہی مٹائیے، کہ اپنے دلوں کی ساری اپنے دلوں کی ساری سیاہی مٹائیے، ارے رو رو کے روٹھے رب کو، رو رو کے روٹھے رب کو خدا را منائیے، خدا را منائیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آئیے میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے مقتدی اور خطیب کو دعوت خطابت دینے کے آرزو رکھتا ہوں، جن کی آواز عام آوازوں کی طرح نہیں، جو منہ سے نکلتے ہی فضا میں حل ہو کر فنا ہو جائے، نہ ہی ان آوازوں کی طرح ہے جو صرف آڈیو ویڈیو میں قید ہو کر ہزاروں کانوں کی تفریح کا سامان بن کر رہ جاتی ہے، بلکہ ان کی آواز تو وہ آواز ہے جو سینوں میں اپنا آشیانہ بنا لیتی ہے، دلوں کو اجاگر کر دیتی ہے، احساسوں کو دیتا ہے، آنکھوں کو اشکبار کر دیتی ہے، جن کے سوزے دل اور جگر کے ساتھ جو بھی تارے نفس نکلتا ہے وہ تب عیسیٰ ہوتا ہے، جسے سن کر قبروں کے مردے بھی چھری لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ یدے بیضا ہوتا ہے جو پتھروں کو بھی پانی کر دیتا ہے، ان کے الفاظ میں ان کا دل سلگتا اور خون بولتا ہے، ان کے جملے دریائی لہروں کی طرح روا توا ہوتے ہیں، ان کی آواز میں وہ دھندے سے جانی ہے کہ طوفانوں کا مقابلہ کرے، ان کے لہجے میں وہ سحر ہے کہ ہوائیں رک کر وقت ٹھہر کر سنے، وہ بیان نہیں کرتے، عقلوں کا شکار کرتے ہیں اور اپنی زور بیانی سے مجمع کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں، ان میں دماغوں سے کھیلنے کا ہنر اور دلوں کو اجاگر کرنے کا جوہر ہے، وہ شعلہ کے مانند بھڑکتے اور بجلی کے طرح کڑکتے ہیں، ان میں پکار اور للکار دونوں ہے۔ میری مراد حضرت مولانا منت اللہ صاحب دامت برکاتہم ہے۔ میں اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال کرنا چاہتا ہوں کہ شہنشاہ خطابت چلے آئیے، کہ سبحان اللہ، شہنشاہ خطابت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، شہنشاہ خطابت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی محبت کے بارے خطابت چلے آئیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ ایک بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ نماز پڑھنا ایک عبادت ہے، ہم روزے کو بھی عبادت سمجھتے ہیں، زکوٰۃ اور حج کو عبادات میں شمار کرتے ہیں۔ ہم نے یہی سمجھا ہے کہ نماز پڑھنا عبادت اور نماز کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ عبادات کے قبیل سے نہیں ہیں۔ روزہ رکھنا عبادت، روزے کے علاوہ جو چیزیں زندگی میں ہم برتتے ہیں وہ دنیا کی چیزیں ہیں، وہ عبادت کے قبیل سے نہیں۔ میرے دوستو، آج یہ تقریب جو منعقد ہوئی ہے، کل جو تقریب منعقد ہونے والی ہے، اسی کے سلسلے کی عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ہے، کبھی میلاد کا پروگرام رکھا جاتا ہے، کبھی جلسے کا پروگرام رکھا جاتا ہے، اور منشا اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو شادی کا کام، شادی کا عمل، شادی کی تقریب کو انجام دینے جا رہے ہیں، اس انجام دہی کی ابتدا خیر کے کام سے ہو، اچھائی کے کام سے ہو، اللہ کے کلام سے ہو، رسول کے سنت سے ہو۔ اس خیر کو اس شادی کے عمل میں لانے کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ آج اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے مکھیا جی نے، عبدالستار صاحب نے جو یہ پروگرام کیا ہے، یہ جلسہ کیا ہے، منشا اصل یہ ہے کہ ہماری شادی جو کل ہونی ہے، اللہ پاک اس میں خیر اور برکت عطا فرمائے، اور یہ شادی ایسی شادی ہو
जो अल्लाह ताला के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चहेती बेटी हजरत फातिमा की हजरत अली से की, और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजतुल कुबरा और हजरत आयशा से फरमाई। जो बरकत अल्लाह ताला ने इन लोगों की जिंदगी में नसीब फरमाए थे, अल्लाह पाक हमारे घर में भी, हमारी बच्ची को भी, हमारे दामाद को भी अल्लाह पाक वो जिंदगी नसीब फरमाए। लेकिन मेरे दोस्तों, हमने एक चीज जहन से बिल्कुल निकाल दिया है कि ये शादी का अमल है, शादी की तकरीब है, निकाह का काम है, ये इबादत है या नहीं है, हमने कभी इसको तलाश नहीं किया। जब हम नमाज पढ़ने चलते हैं तो नमाज पढ़ने से पहले नमाज के मसाइल की वाक़ियत हासिल करते हैं, उलमा से, जानकारों से हम पूछते हैं कि हमें 2 रकात नमाज पढ़नी है, हमने वुज़ू इस ढंग से की कि वुज़ू हमारा हुआ या नहीं हुआ। रोज़ा रखते हैं तो उसमें पूछते हैं कि हमने इस वक्त कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, तो हमारा रोज़ा दुरुस्त हुआ या नहीं हुआ। इसी तरीके से ज़कात और हज का मामला आता है। अल्लाह ताला ने जिन्हें साहिब वसअत बनाया है, जो ज़कात देने के मुस्तहिक़ हैं, जिन पर अल्लाह ताला ने ज़कात फर्ज फरमाया है, उलमा से उनके मसाइल पूछते हैं। हज के लिए लोग जाते हैं तो हज के जाने से पहले हज की तैयारी करते हैं, उसके मसाइल को जानते हैं, पढ़ते हैं, उलमा से पूछते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, हमारे माशरे की ये बहुत बड़ी खराबी है कि हमने शादी के अमल को दुनिया का अमल समझ लिया। हमने शादी के काम को, निकाह के अमल को हमने दुनिया का काम, दुनिया का अमल समझ लिया है, दीन से बिल्कुल इसको परे रख दिया है। हमने कभी ये गौर नहीं किया है कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे नबियों में इस सुन्नत को, इस तरीके को, इस रिवाज को राइज किया, और फिर आज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के आज तक, और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक ये सिलसिला कायम रहेगा। गौर फरमाएं, जिस काम को सारे नबियों ने किया, जिस अमल को सारे नबियों ने अंजाम दिया, वो चीज इबादत ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे दोस्तों, नमाज पढ़ते हैं तो उसके मसाइल को जानते हैं, उलमा से पूछते हैं, लेकिन शादी करने जाते हैं तो उलमा पूछने की जरूरत नहीं है। वहाँ अपनी मर्जी चलाते हैं, अपने मन की शादी करते हैं, कहीं नाच गाने ढोल ताशे होते हैं, कहीं तिलक और जहेज का मामला होता है। ये सारे अमाल करके शादी के खैर और बरकत को हम गारत कर देते हैं, उसको बढ़िया मेट और बर्बाद कर देते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने घर में बेटे और बेटी की शादी करें, टोले और मोहल्ले में अपने और पराये की शादी करें, रिश्तेदारों में किसी की शादी करें, तो इस मौके से उलमाए दीन से पूछें अल्लाह ताला का इस सिलसिले में क्या हुक्म है, जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस सिलसिले में क्या तरीका रहा है। इस तरीके से हम शादी करेंगे तो बगैर इस जलसा किए हुए, बगैर मिलाद किए हुए, फिर भी अल्लाह ताला हमारी शादी में बरकत अता फरमाएगा। मेरे दोस्तों, एक चीज तो ये है कि जब शादी करते हैं तो हम उलमा से पूछते नहीं है। इसकी मिसाल ऐसी ही है, अगर हम इसको इबादत समझते, अगर हम इसको इबादत समझते तो इबादत के ढंग से इसके नोक पलक को दुरुस्त करके मामूली मामूली मकरूहात को, मामूली मामूली नापसंदीदा चीजों को शादी के का जो हिस्सा हमने बना लिया है उसको हटा करके रखते और शादी को बिल्कुल शरीयत के मुताबिक करते। जैसे हम 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, पाक साफ होकर के, साफ सुथरे लिबास पहन करके, और फिर अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, वहाँ हम अपनी मनमानी नहीं चलाते, वहाँ हम उलमा से पूछते हैं, और हमारा नफ्स और दिल नमाज की हालत में ऐसा होता है कि हमारी नमाज ऐसी हो कि अल्लाह ताला को पसंद हो। हम कोशिश ये करते हैं कि हमारी ये 2 रकात नमाज ऐसी हो जाए जो आखिरत में हमारे निजात का जरिया बन जाए। कभी ऐसा नहीं होता है कि हम नमाज पढ़ रहे हो और पीछे ढोल ताशे लगा दिए हो, कभी ऐसा
खड़े होते हैं तो हम मामूली आदाब की रियायत करते हैं, निगाह के आदाब की रियायत करते हैं, हाथ और पैर के निगाह जो है हम रियायत करते हैं। इसी तरीके से हम अपने ज़बान की रियायत करते हैं, अच्छे से अच्छे इमाम को ला करके कुरान पढ़वाते हैं नमाज में, ताकि नमाज हमारी बेहतर से बेहतर हो, नमाज हमारा हो ऐसा जो हमें आखिरत में काम आने वाला हो, हमारे लिए निजात का जरिया और सबब बने। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर कोई आदमी नमाज पढ़ रहा हो, आगे अल्लाह अकबर कह करके हाथ बांध लिया हो और पीछे ढोल और ताशा बजा दिया हो, बताइए वो नमाज अल्लाह ताला को कबूल होगा? उस नमाज को अल्लाह ताला पसंद फरमाएंगे। ऐसी नमाज से जिंदगी में बरकत आएगी, ऐसी नमाज हमें आखिरत में निजात दिलाएगी, कभी नहीं हो सकता है मेरे दोस्तों। तो याद रखें, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में ये निकाह का अमल, शादी का अमल, शादी की तकरीब ये हमारे लिए बरकत का बाइस हो, बरकत का सबब बने, हमारे घर में बरकत आए, तो याद रखें कि हम इस इबादत को इबादत के तरीके से अंजाम दें, ताकि ये अमल हमारे लिए बरकत का सबब बने, इस दुनिया में भी हमारे लिए बरकत का सबब बने। और अल्लाह ताला इस जोड़ी को क़यामत तक कायम फरमा करके, क़यामत तक एक साथ रख करके, आखिरत में जन्नत में अल्लाह ताला इस जोड़ी को कायम रखे, जन्नत में एक साथ जगह अता फरमाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक चीज ये अर्ज करनी है और दूसरी चीज ये अर्ज करनी है कि जब जिंदगी के मिठास में कड़वाहट आती है, शादी का अमल हुआ और दोनों में बच्ची पैदा हुई, एक दूसरे से शिकवे और शिकायत होने लगे, तो ऐसे मौके से हमारे नौजवान बात बूढ़े भी ऐसा करते हैं कि बीवी को 1 2 3 कर देते हैं। मेरे दोस्तों, ये अच्छी तरह समझ लें कि जब हम किसी बेटे या बेटी की शादी करने जाते हैं तो टोला मोहल्ला गांव समाज रिश्तेदार खानदान सारे लोगों को चंद मर्तबा हम उनके यहाँ लड़की वाले के यहाँ जाते हैं, लड़की वाले सारे के सारे मिलकर के हमारे यहाँ आते हैं। बड़ी मुश्किल से ये रिश्ता कायम होता है और बड़ी मुशक्कत उठानी पड़ती है, और जब निबाह की कोई सूरत नहीं होती है, लड़का और लड़की में थोड़ी सी नाचाकी होती है, तो ऐसे मौके से लड़का तने तनहा 1 2 3 तीनों फायरिंग कर देता है। ऐसे मौके से उन नौजवानों को, उन बूढ़ों को सोचना चाहिए कि हमारे रिश्ते को जोड़ने में, रिश्ते को बनाने में हमारे पूरे मोहल्ले और समाज का की कुर्बानी है, और फिर जाकर के ये रिश्ता कायम हुआ। और जब आज छोड़ने का मामला आ रहा है, जब उसको अपने ज़ौजियत से, अपनी जिंदगी से उसके हटाने का मामला आ रहा है, तो उसमें हम अकेले खुद मुख्तार हैं, जो चाहे कर लें। ऐसे मौके से अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, हकमन मिन अहलिही व हकमन मिन अहलिहा। जब दोनों की जिंदगी में नाचाकी हो जाए, हमारी बात बीवी को पसंद ना हो, बीवी की बात हमें पसंद ना हो, ऐसे मौके से अल्लाह ताला ने कहा है कि एक आदमी लड़के के तरफ से हो, एक आदमी लड़की की तरफ से हो, और ऐसे लोग हो जो लड़के का खैर खा हो, जो लड़की का खैर खा हो, और दोनों एक दूसरे को एक जगह जमा करके चारों आदमी बैठ करके सारे मसाइल को हल करें। मेरे दोस्तों, जब कभी जिंदगी में निबाह की सूरत न बने, तो शरीयत ने ये तरीका रखा है कि हम ऐसे मौके से अपने घर वालों को जानकारी दें, और जानकारी दे करके और फिर तस्वीर करने की कोशिश करें, आपस में सुलह सपाटे की कोशिश करें, ताकि ये जिंदगी बेहतर और खुशगवार बन जाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कहने का गर्व यही है, 2 चीजें मैं आप हजरात से अर्ज करना चाहता हूँ कि इस शादी के अमल को इबादत बना करके रखें, ताकि इस शादी से हमें दुनियावी लज्जत हासिल हो, दुनिया में सुरूर और सुकून हासिल हो, आखिरत में अल्लाह पाक हमारे लिए निजात का जरिया बनाए, ये निजात का सबब बने, और दोनों ये जोड़ी जो है जन्नत में एक साथ रहने वाले बन जाए। ये जब ही होगा जब हम सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि जिंदगी में जब निबाह की कोई सूरत ना हो, तो ऐसे मौके से दोनों फरीक, लड़का वाले लड़की वाले, आपस में सर जोड़ करके बैठें और आपस में ये मुआहदा करके उठें कि हमें इस जोड़ी को बसाना है, और इसकी क्या शक्ल होगी। अगर लड़की की गलती है तो उसको आप मुंह पे बर्दाश्त कि ये बेटी तुमने यहाँ पे गलती की,
لڑکے کی غلطی ہے وہاں پہ لڑکے کو کہیے کہ بیٹا تم نے یہاں غلطی کی ہے. اگر ایسا ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ طلاق کی نوبت نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ شاموں سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.